in the start of this fourth-year session, and we discussed the lid. Ptosis is a lid condition, different types, congenital and acquired. So we have already discussed this topic. Now we are going to repeat this topic of ptosis. Ptosis is drooping of the upper lid below its normal position. Ptosis is defined as drooping of upper eyelid below its normal position. Normal position is that upper lid. Bismillahirrahmanirrahim. We started ophthalmology in fourth year with the topic of eyelid and discussed different eyelid diseases, and one of them was ptosis. So you already know about ptosis. What is ptosis? You have taken the tests about of the eyelid. This is just a repetition about this condition of ptosis. What is ptosis? It is the drooping of the upper eyelid below its normal position. Normal position of the upper eyelid is that its margin covers about 2 millimeters of upper cornea. Drooping can be usually due to paralysis or defective development of levator muscle. जो upper eyelid को मसल ऊपर उठाते हैं वो है मेनली है लेवेटर पैल्पेब्री सुपीरियोरिस. इसको असिस्ट करते हैं मुलर मसल और फ्रंटालिस मसल. So drooping of the upper eyelid is usually due to defective development of levator muscle or due to paralysis of levator muscle. Ptosis can be unilateral or bilateral. Ptosis can be partial or complete. This picture shows drooping of the right upper lid and reaching almost towards the upper border of the pupil. The other eye, left eye, is normal. Left eye upper eyelid is covering about 1 millimeter of the upper cornea. This picture shows unilateral ptosis. This picture shows bilateral ptosis. दोनों आईज की अपर लिड जो है ना वो ड्रूप की हुई हैं and they are covering almost half of the cornea. Types of ptosis. Ptosis can be congenital and it can be acquired. Congenital की आगे types हैं. Congenital ptosis can be simple or can be complicated. ये हम बाद में discuss करते हैं. Complicated means that ptosis is associated with other ocular abnormalities. For example, blepharophimosis or Marcus-Gunn phenomena. Acquired ptosis of 4 types: neurogenic ptosis, myogenic ptosis, aponeurotic ptosis, and mechanical ptosis. Congenital and acquired. Congenital की 2 types, simple, complicated, और acquired की 4 types, neurogenic, myogenic, aponeurotic, mechanical.
प्रोसेस की पेशेंट में कुछ प्री रेक्विजिट्स है, आपने एग्जामिन करना है पेशेंट को, तो आपने मेजर करना है कि प्रोसेस है कितना, ग्रुपिंग ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट की कितनी स्वेरिटी है, कितना मेजरमेंट है। मेजरमेंट करने के लिए मुख्तलिफ टेस्ट करते हैं। The number one is the margin reflex distance. Margin reflex distance. Measurement of process. Margin reflex distance में करते ये हैं कि lid margin to corneal light reflex. आँख के ऊपर लाइट डालते हैं और उस लाइट का रिफ्लेक्शन कॉर्निया के सेंटर से आपको नजर आता है और उस रिफ्लेक्शन से अपर लिड के मार्जिन तक आपने मेजर करना होता है डिस्टेंस, एंड दिस डिस्टेंस इज नॉर्मली 4 to 4.5 मिलीमीटर. दिस इज नोन एज मार्जिन रिफ्लेक्स डिस्टेंस. जैसे कि लफ्जों से जाहिर है, मार्जिन ऑफ द अपर लिड, रिफ्लेक्स ऑफ द लाइट, रिफ्लेक्स ऑफ द लाइट फ्रॉम द कॉर्निया, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको मेजर करते हैं. दैट इज नोन एज मार्जिनल रिफ्लेक्स डिस्टेंस, MRD. MRD1 भी कहते हैं. और यही डिस्टेंस अगर लोअर लिड से मेजर करें तो उसको कहते हैं MRD2. MRD1 एंड MRD2. कॉर्निया का टोटल डायमीटर होता है 11 to 12 मिलीमीटर. टोटल डायमीटर 12 मिलीमीटर. हाफ इसका हो गया 6 मिलीमीटर, और इस हाफ में से 1 to 1.5 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिलीमीटर अपर लिड कवर कर दिया है, और पीछे रह जाता है 6 में से 4 पीछे रह जाता है. 4 मिलीमीटर कॉर्निया इज नेकेड, इट इज नॉट कवर्ड बाय द लिड normally. The second is the vertical fissure height. Normal vertical fissure height is 7 to 10 millimeter in males and 8 to 12 millimeters in female. ये अपर लिड के मार्जिन से लोअर लिड के मार्जिन के दरमियान जो फासला है उसको कहते हैं वर्टिकल फिशर हाइट. लिवेटर फंक्शन. नॉर्मली लिवेटर फंक्शन अभी बाद में डिस्कस करते हैं. नॉर्मल लिवेटर फंक्शन इज 15 millimeter. 12 to 14 is a good levator function, and less than 4 millimeter is a poor levator function. Measurement of process में आपने ये देखा है कि आपने MRD1 चेक करना है, वर्टिकल फिशर हाइट चेक करनी है, और लेवेटर फंक्शन चेक करना है. लेवेटर फंक्शन चेक करने के बाद आपने फटीगेबिलिटी देखनी है. फटीगेबिलिटी ये है इनएबिलिटी टू कीप द लिड अप फॉर ए लॉन्गर टाइम. कुछ जो नॉर्मल लोग हैं वो लिड ऊपर है तो वहीं रहेगी, लेकिन कुछ डिजीजेज हैं, फॉर एग्जांपल मायस्थीनिया ग्रेविस है, उसमें वो ज़्यादा देर तक अपर लिड वहीं ठहरी नहीं रह सकती. फटीगेबिलिटी, फटीग हो जाती है मसल, तो वो लिड थोड़ा नीचे आ जाती है. तो आपने देखना है कि फटीगेबिलिटी है या नहीं है. तो पेशेंट उस लिड को वहीं पर रख सकता है काफ़ी देर तक, या वो कुछ देर के बाद नीचे आ जाए. ऑकुलर मोटिलिटी डिफेक्ट्स, आपने आई की मूवमेंट्स चेक करनी है, सारे मसल की अपवर्ड मूवमेंट, लैटरल, मीडियल, लोअर. तो आपने देखना है कि किसी तरफ मोटिलिटी डिफेक्ट तो नहीं है. आम तौर पर प्रोसेस के साथ लिवेटर पैल्पेब्ररी सुपीरियर मसल के साथ सुपीरियर रेक्टस भी इन्वॉल्व हो जाता है, और सुपीरियर रेक्टस की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आँख जो है वो थोड़ी नीचे रहेगी. हाइपोट्रोपिया, यानी कि सुपीरियर रेक्टस ने आई बॉल को ऊपर को पुल करना है. अगर सुपीरियर रेक्टस में भी थोड़ा डिफेक्ट है तो आँख थोड़ा नीचे रहेगी. तो इसको कंडीशन कहते हैं हाइपोट्रोपिया. आपने कंपेयर करना है दूसरी आँख से. जॉ विंकिंग फिनोमिना चेक करना है और बेल फिनोमिना चेक करना है, ये अभी बाद में डिस्कस करना. दिस पिक्चर शोज मार्जिन रिफ्लेक्स डिस्टेंस. आप पिक्चर को जो
जो रेड कॉर्निया के ऊपर रेड लाइन है, दिस इज वर्टिकल फिशर हाइट। अपर लिड के मार्जिन से लोअर लिड के मार्जिन तक ये है वर्टिकल फिशर हाइट। सेंटर में जो व्हाइटिश कॉर्नियल के ऊपर रिफ्लेक्स है, उससे जो व्हाइट लाइन नजर आ रही है, दिस इज मार्जिन रिफ्लेक्स डिस्टेंस। लिड मार्जिन से लेकर इस लाइट रिफ्लेक्स तक आपने मेजर करना होता है फुटे से। इसको कहते हैं MRD1। ये है MRD। ऊपर वाली तस्वीर में देखेंगे लाइट रिफ्लेक्स पीपल के सेंटर में नजर आ रही है, और ऊपर उसका जो लिड मार्जिन है, the distance between these two lines is the MRD, margin reflex distance। नीचे वाली तस्वीर में देखेंगे तो आपको पीपल भी कवर नजर आ रही है, तो दैट मीन्स के ये इसमें लिड नॉर्मल पोजीशन पर नहीं है। The lid is drooping down, leading to condition known as ptosis। Margin reflex distance, राइट आंख में देखेंगे, दिस इज ए नॉर्मल आई। सेंटर से अपर लिड मार्जिन तक जो फासला है, दैट इज 4 मिलीमीटर। सेंटर ऑफ द प्यूपल टुवर्ड्स द लिम्बस, टोटल फासला होगा 6 मिलीमीटर। 2 मिलीमीटर आंख नॉर्मली लिड कवर करती है। टोटल कार्निया का जो डायमीटर होता है वो 12 मिलीमीटर होता है। हाफ उसका 6 हो गया, यानी सेंटर ऑफ द प्यूपल से मार्जिन तक। लेफ्ट आंख में आप देख रहे हैं कि लिड ने कवर किया हुआ है, कार्निया का ज्यादा पोर्शन कवर किया हुआ है, और सेंटर ऑफ द प्यूपल या सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्स से लिड मार्जिन तक का जो डिस्टेंस है, दैट इज 1.5 मिलीमीटर। सो दिस इज not normal MRD। Normal MRD is 4 millimeter. This is on left side normal, this is abnormal MRD। Height of palpebral fissure, distance between upper lid margin and lower lid margin is known as fissure height। ये भी चेक करते हैं, अगर ये फिशर हाइट कम होगी दूसरी आंख की निस्बत, दैट मीन्स के ऊपर वाली लिड नीचे आई हुई है। लिवेटर मसल का फंक्शन टेस्ट करने के लिए ऐसे करते हैं कि पेशेंट बैठ जाता है, पेशेंट को कहते हैं नीचे देख, और आपने अंगूठे से उसके आई ब्रो के ऊपर आपने प्रेशर देना है ताकि फ्रंटालिस मसल जो है वो काम ना करे। You put your thumb on the eyebrow to knock out the action of frontalis muscle। पेशेंट नीचे देखता है, फिर जब आप उसे कहते हैं, आपने अंगूठा वही रखा हुआ है अपर लिड उसके आईब्रो के ऊपर, देन यू आस्क द पेशेंट टू लुक अप। ये जो जितनी एक्सकर्शन है नीचे से ऊपर तक, दिस इज लिवेटर फंक्शन। दिस इज लिवेटर फंक्शन। नॉर्मली 15 मिलीमीटर नॉर्मल लिवेटर फंक्शन होता है, लेकिन जो टोसिस के पेशेंट्स हैं उनमें ये लिवेटर फंक्शन कम होगा। अपर लिड एक्सकर्शन, पेशेंट नीचे देखता है, फिर आप आईब्रो के ऊपर अंगूठा रख के उसको कहते हैं ऊपर देखे। ये जितनी एक्सकर्शन है इसको कहते हैं अपर लिड एक्सकर्शन। नॉर्मली इज 15 मिलीमीटर, 12 millimeter is good enough, and 5 to 11 millimeter is fair, and poor 4 millimeter or less excursion of the upper lid by this test is very poor levator function, shows very poor levator function. Levator palpebrae superiorus muscle elevates the upper lid. इसके बाद आपने टोसिस के पेशेंट में अपर लिड क्रीज देखनी होती है। लिड मार्जिन से जो आपको ऊपर क्रीज नजर आ रही है ऊपर वाली लाइन के साथ, ये नॉर्मल है, ये आपने भी मेजर करनी है। जो टोसिस के पेशेंट्स में ये अपर लिड क्रीज का डिस्टेंस ज्यादा होता है।
Then we check pre-tarsal show. Pre-tarsal show लेफ्ट साइड पर अगर आप देखेंगे लिड मार्जिन से ऊपर वाली लाइन तक, ये हम देखते हैं टार्सल प्लेट से ये आपको ये लफ्ज निकाला है कि प्री टार्सल शो, ये टार्सल प्लेट का डिस्टेंस आपको कितना नजर आता है प्री टार्सल शो. Process can be classified into mild ptosis, moderate and severe ptosis, and more severe ptosis. Less than 2 millimeter is mild ptosis. Moderate is 3 millimeter, and 4 millimeter ptosis is severe ptosis. 4 millimeter का मतलब है कि प्यूपिल को आधा कवर किया होगा लिड ने. मोर सीवियर प्रोसेस कवरिंग द होल पीपल, अगर पूरी पीपल को ही कवर कर लिया है तो ये मोर सीवियर प्रोसेस. कैरेक्टरिस्टिक पोस्चर एंड प्रोसेस. प्रोसेस के पेशेंट्स का एक खास उनका पोस्चर का एक होता है, तो उनको नीचे से स्ट्रेट नजर नहीं आता, तो वो आई ब्रोज को ऊपर खींचते हैं फ्रंटालिस मसल की वजह से. आईलिड को ऊपर पुल करने के लिए फ्रंटालिस मसल को यूज करते हैं. फ्रंटालिस मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, दैट लीड्स टू रेज्ड आईब्रोज. और फ्रंटालिस मसल जैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है तो अपर फोरहेड की जो स्किन है उसके ऊपर ऐसे झुर्रियां पड़ जाती हैं, wrinkles on the forehead skin. और सर पीछे की तरफ करता है ताकि उसको नजर सही आए. Eyes being rotated down, आंखें जरा नीचे करता है. Bell phenomena is an upward roll of eyes on attempted closure. आप अपर लिड को पकड़ते हैं और पेशेंट को कहते हैं कि आंखें बंद करो जोर से. नॉर्मली आई बॉल जो है वो अप और आउट ऊपर की तरफ चला जाता है, इसको कहते हैं बेल फिनोमेना नॉर्मल. अगर पुअर बेल फिनोमेना होगा तो सोते वक्त आंख खुली रह सकती है, दैट लीड्स टू एक्सपोजर कैरेक्टराइटिस. ये पोस्चर एंटोसिस है कि ऐसे सर ऊपर को उठा के बच्चा देखता है, आंखें नीचे को, फोरहेड के ऊपर रिंकल्स पड़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि छोटा बच्चा है इसमें रिंकल्स नहीं है. इस पेशेंट में आप देखेंगे तो फोरहेड के ऊपर रिंकल्स पड़े हुए हैं, झुर्रियां पड़ी हुई हैं, और उसके आई ब्रोज आपको ऊपर उठे हुए नजर आ रहे हैं. ये आई ब्रोज जो है फ्रंटालिस मसल कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से आई ब्रोज ऊपर जाते हैं, रिंकल्स पड़ जाते हैं. तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक पोस्चर इन ए पेशेंट विद प्टोसिस. लेकिन आमतौर पर बाइलैटरल प्टोसिस में ऐसे होता है, यूनिलैटरल प्टोसिस में ऐसे आमतौर पर नहीं होता. What is Bell phenomena? This is upward and outward rolling up of the eyeball during sleep or on forcibly closing the eyelids. सोते वक्त नॉर्मल बंदे का आंख ऊपर चली जाती है, तो अप एंड आउट नॉर्मल है ये बेल फिनोमेना. क्या इसको चेक करने के लिए हम पेशेंट को कहते हैं जोर से आंख बंद करो, और हम अपर लिड को होल्ड करते हैं तो हमें पता चलता है कि आंख ऊपर जा रही है या नहीं. इट इज ए प्रोटेक्टिव मूवमेंट, इट इज ए प्रोटेक्टिव मूवमेंट. ये प्रोटेक्शन, आई की प्रोटेक्शन के लिए ये मूवमेंट है बेल फिनोमेना. इफ एब्सेंट प्रोसेस सर्जरी में लीड टू एक्सपोजर कैरेक्टराइटिस. अगर ये बेल फिनोमेना नहीं होगा, पेशेंट सोते वक्त या क्लोज आंख करते वक्त आंख ऊपर नहीं अगर जाती, बेल फिनोमेना नेगेटिव है, तो सर्जरी अगर प्रोसेस ही करेंगे, लिड ऊपर उठा देंगे, तो दैट लीड्स टू एक्सपोजर कैरेक्टराइटिस की वजह से आंख खुली रह सकती है, जिसकी वजह से कॉर्निया के ऊपर कैरेक्टराइटिस या अल्सर बन सकता है. दिस इज ए बेल फिनोमेना. अपर लिड को पकड़ा हुआ है बंदे ने और पेशेंट को कहा है कि जोर से आंखें बंद करो. लेफ्ट आंख तो बंद है, राइट बंद नहीं हो रही बिकॉज अपर लिड इज हेल्ड बाय द असिस्टेंट.
So the eyeball is going up. Eyeball ऊपर को गई है, सामने straight की बजाय ऊपर चली गई है. This is a normal bell phenomena. Levator function test कैसे करते हैं? Patient is asked to, patient stool पे बैठ जाता है and you ask the patient कि आप नीचे देखें. Thumb is firmly placed on the patient's eyebrow. Eye के brow के ऊपर assistant या examiner firmly place करता है eyebrow के ऊपर ताकि frontalis muscle का action ना हो किया जा सके. Then the patient is asked to look up. The amount of excursion of upper lid is measured by the scale. घुटा साथ रखते हैं और देखते हैं कि जब पेशेंट नीचे देख रहा है तो अपर लिड का लोअर मार्जिन कहाँ पर है. Then you ask the patient to look up. The excursion of the upper lid margin is measured by the scale. Good levator function is more than 8 millimeter, and fair levator function is 6 to 7 millimeter, and 4 millimeter or less is the poor levator function. And a patient levator function test is very important in the assessment of a patient of ptosis. लेवेटर फंक्शन ऐसे चेक करते हैं. अंगूठा जो है वो आईब्रोज के ऊपर रखते हैं. पेशेंट को कहते हैं नीचे देखो. पेशेंट नीचे देख रहा है फिर उसको कहते हैं ऊपर देख. और अपर लिड जितनी मूव करती है वो फुटे से या मेजर स्केल से आप मेजर करते हैं कि लेवेटर ने अपर लिड को ऊपर कितना पुल किया है. दिस इज लेवेटर फंक्शन टेस्ट, very important in a patient of ptosis. एक तो प्रोसेस साहब जैसे मुख्तलिफ कंडीशन और भी होती हैं तो इसमें सूडोटोसिस भी हो सकता है. apparent drooping of the upper lid. आपको लगेगा कि शायद अपर लिड ड्रूप कर रही है लेकिन एक्चुअली ड्रूपिंग होती नहीं है. दिस इज नोन एज सूडोटोसिस. इसकी मुख्तलिफ काजेज हैं. नंबर 1 काज इज due to lack of support of the lids, as in a condition of anophthalmos or microphthalmos or phthisis bulbi or artificial eye. Anophthalmos में आंख पीछे की तरफ चली जाती है. Microphthalmos में आई बाल छोटा होता है. Phthisis bulbi में भी आंख छोटी हो गई है और artificial eye भी छोटी हो सकती है. The other important cause is contralateral lid retraction. Contralateral lid retraction. जिस तरफ आपको प्रोसेस नजर आ रहा है लेकिन दूसरी आंख को अगर आप देखते हैं तो उसमें अपर लिड ज्यादा ऊपर रिट्रैक्ट की हुई है. उस कंडीशन में भी आपको ऐसे लगता है शायद दूसरी आंख का प्रोसेस है लेकिन एक्चुअली दूसरी आंख का अपर लिड रिट्रैक्शन ज्यादा हुई होती है. Number 3 is the ipsilateral hypotropia. Ipsilateral hypotropia जिसमें आपको प्रोसेस नजर आ रहा है उसी आंख का आई बॉल वो नीचे की तरफ आपको गया हुआ नजर आ रहा है. इसको कहते हैं हाइपोट्रोपिया. Brotosis, excessive skin or seventh nerve palsy also leads to pseudotosis. Dermatochalasis, another condition, leads to pseudotosis. Right eye shows ptosis, but this is due to empty socket, very shrunken eyeball. The empty socket की वजह से eyeball है नहीं है पीछे नॉर्मल हालत में, जो अपर लिड नीचे आ गया तो दिस इज सूडोटोसिस. टोसिस नहीं है, एक्चुअल कंडीशन इज shrunken eyeball with or empty socket. Right anophthalmos. लेफ्ट आई नॉर्मल है. अपर लिड ने नॉर्मली ऊपर का पोर्शन कॉर्निया का कवर किया हुआ है. राइट आंख में आप देख रहे हैं कि आई बॉल ही पीछे को गया हुआ है, एनॉप्थैल्मोस. तो इसकी वजह से आंख छोटी नजर आ रही है एंड दैट लीड्स टू सूडोटोसिस. The actual condition is anophthalmos and that has led to the drooping of the lid
forming pseudodosis. Right ptosis due to blowout fracture. राइट आर्म आप देखते हैं लेफ्ट आर्म नॉर्मल है तो राइट साइड पे ब्लो फ्रैक्चर हुआ है जिसकी वजह से आंख पीछे चली गई है, संकन हो गई है और आपको सूडोटोसिस नजर आ रहा है ड्यू टू ब्लो आउट फ्रैक्चर. दिस इज सूडोटोसिस. सूडोटोसिस राइट आंख में आईलिड की स्वेलिंग नजर आ रही है एंड दैट स्वेलिंग has led to development of ptosis. ये है contralateral lid retraction. राइट आंख में देखेंगे तो नॉर्मली अपर 2 मिलीमीटर ऑफ द कॉर्निया इज कवर्ड बाय द अपर लिड, लेकिन लेफ्ट आंख में अगर आप देखेंगे तो उसने कॉर्निया को कवर नहीं किया हुआ, लिम्बस के ऊपर लिड मार्जिन है. दैट मीन्स दिस इज द रिट्रैक्शन ऑफ द अपर लिड. Actual condition is retraction of the left eye upper lid, लेकिन लगता है ऐसे कि शायद राइट आंख का लिड नीचे है. So this is a pseudotosis. Ipsilateral hypotropia. राइट आंख आपको नॉर्मल नजर आ रही है, लेफ्ट आंख में आंख आई बॉल ही नीचे को गया हुआ है और इस आई बॉल के नीचे जाने के साथ जो सुपीरियर रेक्टस वो काम नहीं सही कर रहा. सुपीरियर रेक्टस इज क्लोजली रिलेटेड विद द लेवेटर मसल. तो अगर हाइपोट्रोपिया हो उसके साथ लेवेटर का फंक्शन भी कम हो जाता है. हाइपोट्रोपिया ड्यू टू सुपीरियर रेक्टस डिफॉर्मिटी या डिसेबिलिटी. सुपीरियर रेक्टस के साथ लेवेटर भी साथ उसके जुड़ा होता है या साथ ही काम करता है. ये दोनों मसल की सप्लाई भी एक ही है. तो अगर हाइपोट्रोपिया हो ड्यू टू लेस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सुपीरियर रेक्टस, दैट आल्सो लीड्स टू सूडोटोसिस. Ipsilateral hypotropia associated with drooping of the lid leads to pseudotosis. Dermatocalosis. लिड जो है वो लेफ्ट आर्म पे देख रहे हैं कि लिड की कंडीशन की वजह से स्टोसिस हो गया. डर्मेटोकलोसिस. अब जो मेन टाइप्स थी स्टोसिस की वो थी कंजेनिटल और एक्वायर्ड. कंजेनिटल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. कंजेनिटल स्टोसिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. ज्यादातर 80% केसेस स्टोसिस के कंजेनिटल होते हैं. This is the commonest form. Congenital ptosis is due to defective development of muscles. Levator palpebral spinalis muscle जो है उसकी defective development की वजह से होता है. Normal development नहीं है muscle की, इस वजह से होता है. तो ये ptosis का ये hereditary condition भी हो सकती है कि inherit भी हो सकता है ptosis. वजह इसकी क्या है? डिफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ लेवेटर मसल. कॉम्प्लिकेटेड कंजेनिटल टोसिस. एक का सिंपल, ये है कॉम्प्लिकेटेड. कॉम्प्लिकेटेड कंजेनिटल टोसिस मींस दैट इट इज एसोसिएटेड विद माल डेवलपमेंट ऑफ अदर सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स. एक तो सिर्फ लेवेटर की माल डेवलपमेंट है, लेकिन इसके साथ अगर बाकी सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स की भी माल डेवलपमेंट है तो इसको कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड कंजेनिटल टोसिस. फॉर एग्जांपल डिफेक्टिव अपवर्ड मूवमेंट ऑफ आइज, सुपीरियर रेक्टस इन्वॉल्व हो गया. मार्कस कंजाक्टिव फिनोमेना है कि थर्ड और फिफ्थ नर्व जो है वो आपस में किसी स्टेज पर जुड़ गई हैं. दिस इज अ सिंपल कंजेनिटल टोसिस. लेफ्ट आई शो सिंपल कंजेनिटल टोसिस. Congenital ptosis of right eye. Right side पर left eye normal है, right eye is showing congenital ptosis. आपको एज से भी पता चल जाता है कि congenital ptosis जो है वो बच्चों में ज़्यादा शुरू में होंगे. जो acquired ptosis हैं
जो बड़ी उम्र के लोगों में होते हैं। आमतौर पर बड़ी उम्र के लोगों में एक्वायर्ड टाइप्स ऑफ डोसेज होते हैं। ये छोटे बच्चों में आमतौर पर कंजेनिटल डोसेज होते हैं। दिस इज मार्कस गंजाविंकिन फिनोमेना। लेफ्ट साइड वाली तस्वीर में देखेंगे तो राइट लिड, अपर लिड जो है ना, उसने आँख को ही बंद की हुई है, सीवियर टाइप ऑफ प्रोसेस। लेकिन आप उसको कहते हैं जा विंकिंग, मुंह खोलो, तो आप देखते हैं जो राइट आईलिड ने कवर किया था वो दोनों आंखें बराबर खुल गई। दिस इज मार्कस गन जा विंकिंग फिनोमेना। मार्कस गन जा विंकिंग फिनोमेना। This is due to communication between third and fifth nerves. मार्कस गन जा विंकिंग फिनोमेना। लेफ्ट ए वाली पिक्चर में आप देख रहे हैं कि राइट आंख ग्रुपिंग ऑफ द अपर लिड, और बी पिक्चर में देख रहे हैं पेशेंट ने मुंह खोला है, जा विंकिंग करा है। साइड टू साइड मूवमेंट जा करें या ओपन करें तो राइट आंख जो ए तस्वीर में ग्रुपिंग थी वो दोनों बराबर खुल गई। दिस इज मार्कस गन जा विंकिंग फिनोमेना। नर्वस न्यूरल एबनॉर्मेलिटी के मसल ऑफ टेरिकॉइड को जो नर्व सप्लाई करती है वो लिवेटर को थर्ड सप्लाई करती है। ये इनका आपस में कनेक्शन कहीं हो जाता है कंजेनिटल डिफॉर्मिटी की वजह से। कंजेनिटल डोसिस में सिम्टम क्या होंगे? नो सिम्टम इफ पीपल इज नॉट कवर्ड बाय लिड। अगर ऊपर ऊपरी है तो पेशेंट को कोई खास मसला नहीं होता, दोनों आंखों से उसको नजर आ रहा है। पेशेंट डोसिस थोड़ा है, आमतौर पर पेशेंट कंप्लेन नहीं करता। अदरवाइज देयर इज विजुअल डिस्टर्बेंस। अगर पीपल के करीब आ जाए अपर लिड तो उसको विजुअल डिस्टर्बेंस होगी, नजर का प्रॉब्लम हो जाएगा। कॉस्मेटिक डिसफिगरमेंट, एक आंख पूरी खुल नहीं रही, पेशेंट कहता है जी आंख छोटी हो गई है, तो पेरेंट्स आके कंप्लेन करते हैं कि ये आंख छोटी है। तो कॉस्मेटिकली जब पेशेंट जरा बड़े हो जाते हैं देन दे फील कि भी ये तो अच्छा नहीं लग रहा। तो कॉस्मेटिक डिसफिगरमेंट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम। कंपनसेटरी हेड पोस्चर, सिम्टम में होगा कि फोरहेड wrinkling, elevation of eyebrows and tilting of the head backwards। तो ये पेशेंट का एक खास टिपिकल हेड पोस्चर होगा है। दिस इज आल्सो ए सिम्टम। पेशेंट ऊपर ऐसे सर ऊपर करके देखता है। साइंस क्या होंगे? क्लिनिकल साइन क्या होंगे? अपर लिड मार्जिन कवर्स मोर ऑफ द कॉर्निया देन नॉर्मल। जैसे आपने देख लिया कि जो कॉर्निया है वो ज्यादा कवर हो जाएगी नॉर्मल से। पैल्पेब्रल फिशर इज नैरोअर देन नॉर्मल। जो अपर लिड और लोअर लिड के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। नो फोल्ड इन द स्किन ऑफ अपर लिड। अपर लिड के ऊपर जो फोल्ड या क्रीज होगी वो नहीं होगी। एंड अटेम्प्ट टू एलिवेट द लिड लीड टू एलिवेशन ऑफ आईब्रो एंड रिकलिंग ऑफ द फोरहेड। ऊपर उठाने की कोशिश करता है लिड, उसे फोरहेड के ऊपर रिंकलिंग हो जाएगी और आईब्रो ऊपर की तरफ उठेंगे। Head is tilted backward to expose pupillary area. Very little action of levator muscle. Levator muscle का फंक्शन चेक करेंगे तो उसका levator muscle का फंक्शन नॉर्मल नहीं होगा। ये साइंस हैं। Amount of process varies in different patients. ये कितनी अमाउंट ऑफ प्रोसेस है वो कितनी है पेशेंट्स में, ज़्यादा हर पेशेंट में डिफरेंट उसकी होगी। Congenital ptosis का ट्रीटमेंट क्या है? Surgery is the treatment of choice in a case of congenital ptosis, particularly simple congenital ptosis, and surgery is done at 3 to 5 years when the ptosis is partial, पूरा उसमें severe नहीं है, कम है, तो आप 3 to 5 years पे सर्जरी करेंगे। लेकिन अगर अपर लिड ने पीपल को कवर कर लिया हुआ है, ज्यादा सीवियर प्रोसेस है, तो फिर आप जल्दी सर्जरी करते हैं ताकि एम्ब्लियोपिया ना हो। एम्ब्लियोपिया हो जाता है अगर नजर ना आए किसी वजह से, तो वो आंख फिर उसमें विजन डेवलप नहीं होती, दैट लीड्स टू एम्ब्लियोपिया।
The type of surgery depends on the amount of ptosis, levator function and associated anomalies. आपने सर्जरी किस किस्म की करनी है, ये डिपेंड करता है कि प्रोसेस कितना है, लेवेटर का फंक्शन कितना है, या एसोसिएटेड एनोमलीज और हैं ये नहीं. सर्जिकल प्रोसीजर्स मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन है, लेकिन मेनली ये ऑपरेशन है. नंबर 1 इज फासानेला सर्वेट ऑपरेशन डन फॉर माइल्टोसिस. Fasanella servate operation is done for mitosis. Levator dissection or levator plication is done for moderate type of process, and frontalis suspension is done with silicone band or fasciolata in severe type of process with poor levator function. Frontalis suspension करते हैं जब levator function बहुत कमजोर हो और फ्लूइड किस्म का प्रोसेस हो, उसमें आप फ्रंटालिस सस्पेंशन करेंगे. ये मेन ऑपरेशन है. माइल्ड के लिए फासानेला, मीडियम प्रोसेस के लिए लेवेटर डिसेक्शन और प्लाइकेशन, और सीवियर प्रोसेस के लिए फ्रंटालिस सस्पेंशन करते हैं. दिस इज फासानेला सर्वेट ऑपरेशन. इसमें ऐसे करते हैं, आईलिड को इवर्ट कर लेते हैं और दो आर्टरी फोर्सेप्स उनको आप दोनों तरफ लगाते हैं. उसके अंदर इंक्लूड करते हैं कंजंक्टिवा, टार्सल प्लेट और बाकी स्किन भी आ जाती है. स्किन तो नहीं आती, लेकिन इसमें मेनली टार्सल प्लेट्स और लेवेटर मसल, इनको आप ऊपर से काट देते हैं और काटने के बाद दोनों को आप स्टिच कर देते हैं. दिस इज गुड एनफ फॉर माइल्ड प्रोसेस. थोड़ा बहुत है तो ये फासानेला सर्वेट ऑपरेशन. अपर लिड को इवर्ट किया हुआ है, दोनों तरफ आर्टरी को लगाए हुए हैं और टार्सल प्लेट और लेवेटर मसल और कंजंक्टिवा को काट के दोबारा स्टिच कर देते हैं. इस जगह ये पोर्शन निकाल देते हैं. लेवेटर डिसेक्शन ये है कि लेवेटर को एक्सपोज करने के बाद आपको लेवेटर मसल को एक्सरसाइज कर देते हैं, या एक्सरसाइज कर देते हैं या प्लाइकेट कर देते हैं, यानी उसको फोल्ड कर देते हैं. इसको कहते हैं लेवेटर रिसेक्शन. ए पार्ट ऑफ द लेवेटर मसल इज एक्सरसाइज्ड और बाकी जो दोनों एंड्स हैं उनको आपस में जोड़ देते हैं, यानी लेवेटर मसल को शॉर्ट कर देते हैं to improve its elevating power. This is done for medium doses. This is frontalis suspension. इसमें frontalis levator function बहुत कम होता है, तो लिड के मार्जिन के 3 मिलीमीटर के ऊपर 3 इंसिजन देते हैं और आई ब्रो के ऊपर 2 इंसिजन और 1 इंसिजन फोरहेड के ऊपर. तो ये सूचर यूज करते हैं या सिलिकॉन बैंड यूज करते हैं या फेशियोलाटा यूज करते हैं. तो इनको लिड मार्जिन को हम जोड़ते हैं फ्रंटालिस मसल के साथ. फ्रंटालिस मसल के साथ, फेशियोलाटा के साथ या सिलिकॉन बैंड के साथ लिड मार्जिन को जोड़ देते हैं और जैसे फ्रंटालिस मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो अपर लिड ऊपर उठ जाती है. दिस इज फ्रंटालिस सस्पेंशन. दिस इज डन with poor levator function और severe process में ये करते हैं. Another technique of frontalis suspension, फ्रंटालिस के साथ और मुख्तलिफ टेक्निक्स के साथ करते हैं. कोई किसी टेक्निक के साथ करता है, किसी टेक्निक के साथ करता है. आमतौर पर लिड के ऊपर 3 इंसिजन देते हैं, आईब्रो के ऊपर 2 इंसिजन देते हैं और फोरहेड के ऊपर 1 इंसिजन देके ऐसे पेंटागन बनता है और इनको आपस में पुल करते हैं और अपर लिड ऊपर उसको खींच के ऊपर कर देते हैं. और बेल फिनोमेना इसमें ज़रूरी देखते हैं कि बेल फिनोमेना ना हो तो फिर एक्सपोजर कैरेक्टराइटिस होने के चांसेस हो सकते हैं. लेवेटर सेक्शन फॉर ऑपरेटिव पिक्चर है लेवेटर सेक्शन.
अब एक्वायर्ड टाइप ऑफ प्रोसेस हैं 4 किस्म के, न्यूरोजेनिक, मायोजेनिक, एपिन्यूरोटिक और मैकेनिकल। न्यूरोजेनिक प्रोसेस क्या है? जैसे नाम से जाहिर है कि इट इज रिलेटेड विद द नर्व्स। न्यूरोजेनिक नर्व्स से रिलेटेड है। एक्वायर्ड और कंजेनिटल इनर्वेशनल डिफेक्ट, लिवेटर मसल को थर्ड नर्व सप्लाई करती है, ओकुलोमोटर नर्व। अगर इस थर्ड नर्व की सप्लाई में कोई डिफेक्ट है, इसके न्यूक्लियस में, इसकी नर्व ट्रंक में, तो दैट विल लीड टू न्यूरोजेनिक प्रोसेस। हॉर्नर सिंड्रोम भी एक कंडीशन है। हॉर्नर सिंड्रोम में हार्ट जो मसल्स है वो सप्लाई करते हैं अब सिंपैथेटिक नर्व से। वो तो मुलर मसल, अगर सिंपैथेटिक पाल्सी है तो मुलर मसल भी आईलिड को ऊपर उठाते हैं। तो सिंपैथेटिक पाल्सी की वजह से मुलर मसल काम नहीं करेगा, दैट लीड्स टू हॉर्नर सिंड्रोम and leads to neurogenic type of process. Marcus-Gunther-Winking phenomena, another neurogenic type of process. Misdirection of third nerve, कि किसी ट्यूमर की वजह से, किसी इंजरी की वजह से, ट्रॉमा की वजह से थर्ड नर्व जो है ना मिसडायरेक्ट हो जाती है अगर, तो दैट लीड्स टू बिजार लिड मूवमेंट्स विद आई मूवमेंट्स। कि आई मूवमेंट्स के साथ जो है वो लिड की अजीबोगरीब की मूवमेंट होती है। दिस इज मिसडायरेक्शन ऑफ थर्ड नर्व। थर्ड नर्व पॉलिसी, थर्ड नर्व पॉलिसी अगर हो जाए तो आई बॉल लैटरल साइड पे एबडक्शन की पोजीशन में चली जाती है, बिकॉज लैटरल रेक्टस या सिक्स्थ नर्व तो इंटैक्ट है, तो बाकी मसल जो है वो पैरालाइज हो गए हैं। तो आई बॉल थर्ड नर्व पॉलिसी में लैटरल साइड पे चली जाएगी due to unopposed action of lateral rectus and levator चूंकि थर्ड नर्व से सप्लाई होता है तो उससे drooping of the lid हो जाती है। drooping of the lid with outward movement of the eyeball is due to third nerve palsy. Myogenic process, myogenic से जैसे नाम से जाहिर है, process related with the muscles, process related with muscles. मसल कौन सा है? लिवेटर मसल मेनली है, या मुलर मसल है, या फ्रंटालिस मसल है। ये अपर लिड को ऊपर उठाने में 3 मसल काम करते हैं, मेनली लिवेटर मसल, उसके बाद मुलर मसल और उसके बाद फ्रंटालिस मसल। मायोपैथी ऑफ लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियरिस मसल इटसेल्फ और impaired transmission of impulses at neuromuscular junction। या तो मसल बिजाते खुद उसमें खराबी है, या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, नर्व का जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, या वहां पर खराबी है, दैट लीड्स टू मायोजेनिक टाइप ऑफ प्रोसेस। और दिस इज इसकी एग्जांपल्स है मायस्थीनिया ग्रेविस, एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें एंटीबॉडीज बनती हैं एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर। जो एसिटाइलकोलिन के जो रिसेप्टर्स हैं वहां पर एंटीबॉडीज बन के एसिटाइलकोलिन को एक्ट नहीं करने देती। तो दिस इज कंडीशन इज मायस्थीनिया ग्रेविस, ऑटो इम्यून डिजीज है। तो इसका ट्रीटमेंट भी करते हैं, लेकिन दिस लीड्स टू drooping ऑफ द लिड्स, क्योंकि वो सुपीरियर लिवेटर मसल सही तरह उसकी पैथोलॉजी होगी या मायोपैथी होगी। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी अनदर कंडीशन लीड्स टू मायोजेनिक टाइप ऑफ प्रोसेस एंड ऑकुलर मायोपैथी। जो आई के मसल्स हैं उनकी पैथोलॉजी मसल्स की, सिंपल कंजेनिटल टोसिस also is due to maldevelopment of the levator muscle and blepharophimosis syndrome, another condition in which there is narrowing of the palpebral fissure, आंख छोटी है, blepharophimosis. So these conditions lead to myogenic type of process. Myasthenia gravis,
मायस्थीनिया ग्रेविस में ये होता है कि आमतौर पर ओल्ड एज में लिवेटर की इन इफेक्टिविटी हो जाती है ड्यू टू ऑटो इम्यून एंटीबॉडी present at the neuromuscular junctions, so patient cannot uplift the eye upper eyelid. ये आहिस्ता आहिस्ता थकावट की वजह से इसमें फटीगेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है तो आईलिड नीचे आ जाती है. दिस इज द ptosis is due to myasthenia gravis. This is a blepharophimosis. Blepharophimosis में अभी आपको आंखें छोटी छोटी नजर आ रही हैं. पैल्पेब्रल फिशर छोटी होती है, इंटरकैंथल एरिया ज़्यादा होती है और आपको जो दिस ये कंजेनिटल कंडीशन है लीड्स टू कंजेनिटल टाइप ऑफ ptosis, ब्लेफरोफिमोसिस. ये क्रच स्पेक्टिकल्स हैं. ये जो मायस्थीनिया ग्रेविस टाइप कंडीशंस हैं ये ठीक तो होती नहीं है सही तो, लेकिन आपने लिड को ऊपर तो उठाना होता है, ट्रीटमेंट तो करना होता है, तो उसमें टेम्परेरी मेजर्स आप करते हैं. इस पिक्चर में अगर आप देखें तो ऐनक को लगी हुई ऐनक के पीछे जो है ना वो क्रचेस है, वो क्रचेस दोनों लिड्स को ऊपर उठा रहे हैं. These are crutch spectacles in such conditions as in myasthenia gravis या elderly people में जो senile चेंजेस आती हैं लिड्स या मसल अपर लिड के वीक हो जाते हैं, तो उसमें आप फिर टेम्पररी तौर पर, वरना तो अपर लिड नीचे आ जाएगी तो विजुअल प्रॉब्लम हो जाते हैं. So normally temporarily we can use these crutch spectacles to raise the upper eyelids. Another condition is the aponeurotic process. Aponeurosis of the spirit of the levator. लेवेटर का जो aponeurosis है जहाँ इंसर्शन होती है टार्सल प्लेट के फ्रंट साइड पर, तो इसमें कोई खराबी हो तो that lead to aponeurotic type of process. This is due to defect in the levator aponeurosis. Levator is inserted on the upper margin of the tarsal plate, on the anterior surface of the tarsal plate and on the fornix, upper fornix. यहाँ पर ये लेवेटर इंसर्ट होता है और अगर टार्सल प्लेट के ऊपर इसका एपोन्यूरोसिस में कोई डिस इंसर्शन हो गई है या डिहेशंस हो गई है या जनरलाइज एटेन्युएशन हो गई है, स्ट्रेचिंग हो गई है, that leads to drooping of the lid of aponeurotic process. Involutional process. ओल्ड एज में, सीनाइल एजेस में सारी चीज़ें डिजनरेट कर जाती हैं, मसल डिजनरेट कर जाते हैं, स्किन लूज हो जाती है, तो एज रिलेटेड डिजनरेशन ऑफ द लेवेटर एपोन्यूरोसिस लीड्स टू यूजुअली बाइलेटरल प्रोसेस. पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसेस, कुछ आई की सर्जरी करने के बाद भी बाद काफी ड्रूपिंग ऑफ द लिड हो जाती है. फॉर एग्जांपल कैटरेक्ट सर्जरी की है, ग्लाकोमा की है या रेटिनल सर्जरी की है, तो ये मैनिपुलेशन की वजह से, ट्रामा की वजह से, पहले ब्राइडल सूचर लगाते थे तो उसकी वजह से भी बाद का पोस्ट ऑपरेटिव ऑकुलर operations lead to ptosis, and this is usually due to damage to the levator aponeurosis. Aponeurotic senile age में ये aponeurosis levator का वीक हो जाता है, that leads to aponeurotic ptosis of senile type. senile ptosis दोनों लिड जो है ना वो नीचे गई हुई हैं और आई ब्रोज को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है पेशेंट, तो कम से कम जो पीपल जो है ना वो तो ओपन हो जाए, पीपल नजर आए, यहाँ से कुछ नजर आए. सो दिस इज ए senile in old age due to weakness of the aponeurosis. Senile type of aponeurotic ptosis. Treatment of aponeurotic ptosis.
एपोनेउरोसिस अगर वीक हो गया है या डिसेंस हो गई है या डिसइंसर्शन हो गया है, तो आप उसके जो एपोनेउस है उसको री इंसर्ट कर दें ऑन द एंटीरियर सरफेस ऑफ द टार्सल प्लेट के एंटीरियर सरफेस पर स्टिच कर दें दोबारा से। ये इसका ट्रीटमेंट है। प्रोसेस आफ्टर ओकुलर सर्जरी, राइट आर्म का ऑपरेशन किया गया है तो लेफ्ट आर्म नॉर्मल है। राइट ऑकुलर सर्जरी की वजह से राइट आर्म में रेडनेस भी है ऑपरेशन के बाद, और उसकी वजह से ऑपरेशन के बाद थोड़ा प्रोसेस भी हो गया है। दिस इज पोस्ट ऑपरेटिव टाइप ऑफ प्रोसेस। ग्रेजुअली इट डिक्रीजेज और ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट हो जाती है। एंड द लास्ट वन इज द मैकेनिकल प्रोसेस, impaired mobility of upper lid due to scarring, impaired movement of the upper lid due to scarring or increased weight। upper lid क्या या तो scarring हो गई upper lid की, या उसका वेट ज्यादा हो गया किसी वजह से। फॉर एग्जाम्पल वेट ज्यादा हो गया है, upper lid की इन्फ्लेमेशन हो गई है, ओडीमा हो गया है, हाइपरट्रॉफी हो गई है। इन ट्रैकोमा में हाइपरट्रॉफी हो जाती है एंड दैट लीड्स टू this mechanical type of process। Dermatocolesis, another skin condition, leads to mechanical type of process। lid scarring या ट्यूमर्स लिड के ऊपर कोई किसी किस्म का ट्यूमर्स है, that leads to even कलेजियन leads to mechanical type of process। और कलेजियन बहुत बड़ा हो गया है और उसका तो उसके वेट की वजह से भी आँख पूरी नहीं खुलती, तो even a big lesion leads to mechanical type of process। Treatment of mechanical process is the removal of the cause। अगर इन्फ्लेमेशन हो गया है तो इन्फ्लेमेशन को ठीक करें, अगर ट्यूमर है तो ट्यूमर को एक्सरसाइज करें, इसी तरह स्कारिंग को या बाकी जो भी कंडीशन है उसको आपने उसकी वजह जो है उसको आपने रिमूव करना है। मैकेनिकल प्रोसेस, दिस इज ए मैकेनिकल प्रोसेस। अपर लिड्स दोनों स्वेल हुई हैं, एडिमेटस हैं, तो दोनों आंखें बंद हैं, स्वीयर बड़ा पेशेंट देख नहीं सकता, तो प्रोसेस हुआ है मैकेनिकल। ये जब स्वेलिंग सबसाइड की है तो नीचे वाली तस्वीर में आप देखते हैं कि लिड्स नॉर्मल हो गई हैं, स्वेलिंग सबसाइड कर गई है, एडिमा ठीक हो गया, तो दोनों आईज आपको नॉर्मल नजर आ रही हैं। तो दिस इज मैकेनिकल टाइप ऑफ प्रोसेस due to edema of the lids। Mechanical type of process due to neurofibroma, जैसे कलेजियन की वजह से भी हो सकता है, तो ये न्यूरोफाइब्रोमा की वजह से भी, वेट की वजह से अपर लिड ड्रूप कर रही है। थैंक यू वेरी मच। थोड़ा प्रोसेस की रिवीजन होगी, वैसे तो आपको पहले भी आता है। विश यू ऑल द बेस्ट।